Let's begin with a breaking update that we are picking up owing to the violence that was witnessed in Sambhal in Uttar Pradesh. Now we are getting this news, unfortunately, that 4 people have now been killed in Sambhal violence so far. This is the SP there confirming the information as far as the tragedy that is now concerned and the violence that happened in Sambhal. Let's get in a word from Adeep right now. Adeep, the death toll has gone up. Well, definitely, Amita said the local police has confirmed that the 4 people have lost their life in the violence. The police believes that country-made weapons were used during the violence in which 4 people they have lost their lives during the stone pelting and arson that took place in Sambhal yesterday. 4 bodies have been sent to for the post-mortem, and the police has confirmed that 4 people have lost their life in the Sambhal violence. All right. So, Sobar, even when it comes to the prohibitory orders that have now been imposed, how is the situation looking as of now? Adeep, if you can give us a quick update. The DM also issuing fresh orders. Well, Amita, see, the police has intensified foot patrolling in the district in Sambhal area, especially in that particular zone near the Shahi Jama Masjid. The police have intensified the foot patrolling. Prohibitory orders have been issued by the district magistrate. Internet services have been shut off in Sambhal district to prevent any kind of rumors, so that people can't spread any kind of rumors in the district. And the police is conducting flag march. As of now, police says that the situation is totally under control, and we are trying to bring back normalcy in the district, and we are also trying to figure out who were the people that incited the violence, and the police is now trying to look for the video evidences, CCTV footages and videos that could establish the people who were in the violence, so that the police can make the arrest. So far, around more than 35 people have been arrested, have been detained, and including 2 women, those who were involved in stone pelting. So police is trying to bring back the normalcy in Sambhal district as of now. All right. Looking at the current situation as it has now been brought under control, there have been several precautionary measures that have also been put in place owing to the violence that was witnessed, imposing strict security measures, enforcing prohibitory orders, internet suspension that has also been ordered. Let's in the meantime also get you another update which has now come across as tensions had gripped Sambhal owing to the violence that was witnessed as far as it broke out during a court-monitored survey of the Mughal-era Jama Masjid. And what has now been said when it comes to a violent crowd that opposed the survey that was ordered by the court directly. And even when it comes to the complaint that was filed in the court claiming that the mosque was built after demolishing a temple at the very same site, the mob pelted stones at the police and at the survey team as well. Scores of policemen who sustained severe injuries in the violent clashes. Police also had to resort to lathi charge and use tear gas to control the situation. As far as now the latest information that has now come in as the death toll, which has now gone up to 4. However, the police are now probing another angle, which is the conspiracy angle. The police say they have recovered country-made weapon shells from the violent side, and several police personnel also sustained bullet wounds. According to reports, the crowd allegedly instigated, and now the investigation is underway. Over 20 people, including women, who have been detained and are being questioned by the police. बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि पीसफुली काफ़ी समय से पीछे जो जुम्मे की नमाज है वो भी पीसफुली गुजरी थी। पहला सर्वे भी पीसफुली हुआ। आज भी दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही सर्वे है वो शुरू किया गया था। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन एकाएक आपने देखा होगा लोगों की भीड़ है वो जमी, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। पुलिस ने अपना जितना बेयर मिनिमम नॉन लीथल फोर्स है उसको यूज़ करते हुए उनको खदेड़ने का प्रयास किया, और आपस में 3 फ्लैंक से जब ये लोग लड़े हैं उसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है। और जब मामला सारा शांत हुआ उसके बाद पुलिस में द्वारा वहाँ पे चेकिंग की गई है, तो कई सारे खोखे भी वहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसमें जो 15 बोर के 32 बोर के इस तरीके के कई सारे कंट्री मेड वेपन्स के खोखे बरामद हुए हैं। तो उन सबको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और करीबन 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी है। टीम जब सुबह आई, सुबह सर्वे ठीक चल रहा था, उसके कुछ समय बाद लोग इकट्ठा हुए। निश्चित रूप से कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और खासतौर से यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं जिनका भी पूरा भविष्य आगे पड़ा है। तो उनके इकट्ठा करने के बाद उन लोगों की तरफ से पथराव हुआ।
ये बेवजह था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद जब पथराव हुआ, रिटेलिएशन पुलिस ने उनको खदेड़ा, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद दूसरे तरीके से उनका रिटेलिएशन है। जो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो, वो तो पीछे खड़ी हैं। उसमें से किसने गोली चलाई, कैसे छर्रे लगे सबको, ये भी अभी जांच का विषय है। So as far as the aftermath of Sambhal violence is concerned, top sources are now suggesting that the Samajwadi Party MP has been booked. SP MP Ziaur Rahman Bark has been booked. He is the son of SP MLA Iqbal Mahmood, who has been booked. Iqbal Mahmood हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी। क्या कहेंगे आप, जो कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है पुलिस की तरफ से, बताया जा रहा है कि आपके बेटे को भी अब बुक कर लिया गया है? मेरा बेटा किस वजह से बुक किया गया? जहां तक बताया जा रहा है कि सन ऑफ एसपी एमएलए दैट हैज बीन बुक्ड, यहां पर अभी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि जो कार्रवाई संभल के वायलेंस में जो हिंसा जो वहां पे देखी गई थी, उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। नहीं, मेरा बेटा तो घर पे था, घर पे है। और पहले दिन जो जुमे के दिन हुआ था, उस दिन हुआ था जिस दिन सर्वे हो रहा था, उस दिन वो वहां था, पे जामा मस्जिद में था और उसने प्रशासन को मदद की थी। और एसपी संभल ने मुझसे खुद कहा था कि आपके बेटे का रोल बहुत अच्छा रहा है। मैं नहीं समझता उसे क्यों बुक कर दिया गया। तो आपको इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है? नहीं। तो अभी की जो कार्रवाई के बारे में आप क्या कहेंगे? जो स्थिति अभी बनी हुई है संभल में, बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की अब जो पूछताछ है वो की जा रही है। नहीं, बिल्कुल पूछताछ करें। वो जो बात सही है, जो वाकई इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ उन्हीं को लिया जाए। ये ना हो कि दिखाने के लिए जितने भर लिए उनको ले गए और उनको खिलाफ कार्रवाई कर दी। बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो इसकी जांच ये भी होनी चाहिए कि ये शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। तो इसे जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, हमने देखा कि अखिलेश यादव भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी सवाल उठा रही है, राहुल गांधी भी सवाल उठा रही है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है इस हिंसा का? नहीं, देखिए, राजनीतिकरण की बात नहीं है। यहाँ संभल में जो हुआ है वो एकदम पता नहीं कैसे हो गया। तमाम कोई चीज इस तरह की देखी नहीं गई। एक व्यक्ति ने कोई वाद दायर किया, अदालत में वो गया, वाद दायर किया, उसको सुनवाई की गई, जबकि दूसरे पक्ष को बुलाया ही नहीं गया, बनाया ही नहीं गया। बगैर किसी दूसरे पक्ष को सुने हुए या सर्वे का आदेश कर दिया गया। अच्छा, सर्वे भी हो गया, शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे हो गया उसका। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर उन्होंने सर्वे शुरू किया सुबह 6-7 बजे से, जबकि कोई इत्तला भी नहीं थी इसकी कि अब सर्वे होगा दोबारा। तो आगे जाकर आपको क्या लगता है कि स्थिति जिस तरह से अभी बरकरार रहेगी? क्योंकि डीएम की तरफ से भी आप काफी नए जो इंस्ट्रक्शंस है वो डाल दिए गए हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, इंटरनेट वहां पे सस्पेंडेड है, और आपके बेटे को लेकर जिस तरीके से अगर आप कार्रवाई अगर पुलिस की तरफ से आगे बढ़ेगी तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा बेटा इसमें ही नहीं। हम लोग जो हैं, मेरे पिताजी 3 बार एमएलए रहे हैं संभल के, मेरा 7वां टर्म है संभल का। हमने जब जो राजनीति हमारी हुई है वो हिंदू मुस्लिम एकता पे हुई है। हमारे खिलाफ कोई भी सबूत जो है इस तरह का दे ही नहीं सकता कि हम क्रिमिनल माइंडेड हैं। हमने सबको सहयोग किया, सब हमें सहयोग करते हैं। मगर इस तरह की जहां बात आए वहां पुलिस प्रशासन को बिल्कुल छानबीन करके कदम उठाने चाहिए, आंख बंद करके न करें। जी, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी बताया जा रहा है कि काफी सारे जितने पुलिसमैन वहां पर थे वो भी घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और वो खो के बात करते हुए वहां पे नजर आ रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से जो वेपन्स वहां पहुंचे हैं, उनको लगता है कि ये किसी तरीके का षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी है। नहीं, वेपन्स तो नहीं पहुंचे, वेपन्स की तो कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर। पुलिस की तरफ से ये बयान आया नहीं। पुलिस अपने बचाव में कुछ भी कहे, मगर इस तरह की कोई बात हम नहीं आई है। पथराव जरूर हुआ है जी, क्योंकि षड्यंत्र के बारे में बात कर रही है पुलिस। गए हैं जो गोली चली है वो पुलिस की तरफ से ही चली है, जिससे 4-5 लोग मर गए। जी, क्योंकि अभी की जो खबर आ रही है उसमें 4 लोगों की जान जाने की बात आ रही है।
लेकिन अभी की जी। कार्रवाई के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस की तरफ से अब दूसरा एंगल बताया जा रहा है कि शायद ये षड्यंत्र हो सकता है। नहीं, षड्यंत्र उसमें कुछ नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। ये असल में जनता को और ये जो हमारी जामा मस्जिद की कमेटी है उसको कॉन्फिडेंस में ले ले तो कुछ भी नहीं होता, मगर क्योंकि ये सुबह ही 6-7 बजे ये काम शुरू हो गया, जनता को ये मालूम हुआ जब कॉर्डन कर लिया उन्होंने जामा मस्जिद को, तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी हो गई कि ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। जी सर्वे तो हो चुका जी, चलिए पब्लिक को। जी, शुक्रिया आपका इकबाल मेहमूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट इज द समाजवादी पार्टी लीडर. ही सेज दैट ही डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इफ his son has also been booked by the police, but that remains to be seen because this is a part of the ongoing investigation. Meanwhile, as we talk about the politics, that doesn't seem to be ending there. The blame game that continues as far as on part of insinuations are concerned, because here the Samajwadi Party has been attacking the BJP for the law and order situation, with Akhilesh Yadav himself taking up the conspiracy angle, saying that the violence was actually orchestrated by the BJP. Akhilesh Yadav was also demanded Supreme Court to take cognizance of the matter. Even Owaisi there, who has condemned the firing by the police that has now claimed the lives of 4 people. The political reactions that have been coming in, let's listen in. आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया। सर, संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है जिसमें 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जगह की जो नौयत है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे के धर्म आस्थाओं को चोट पहुंचाकर, दूसरों की दिलाजारी करके अपनी सियासत का उल्लू सीधा किया जाए। All right, with reaction